ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس رات کو کبھی چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی جب میں بے یار و مددگار اپنے گھر سے دور جا رہی تھی۔ میں نے کبھی ساری زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس طرح کے حالات بھی مجھے دیکھنے پڑیں گے۔ میرے ساتھ ہمیشہ نوکروں کی ایک فوج ہوتی تھی، اور اس رات میں اکیلی اپنے ہی گھر سے دور بھاگ رہی تھی۔ اس رات میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن پر نقش ہو چکا ہے۔ میرا نام ہانیہ ہے اور میں منڈی بہاؤالدین کے ایک چھوٹے لیکن ایک خوشحال گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے آس پاس دولت کی ریل پیل دیکھی اور کبھی کسی چیز کے لیے مجھے ترسنا نہیں پڑا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے علاوہ ان کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، اسی لیے میں اپنے امی اور ابو دونوں کی جان تھی۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میرے ابو اپنے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار تھے اور ان کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ باوجود ایک وڈیرا ہونے کے ان کی طبیعت روایتی وڈیروں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ بے حد نرم دل اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے پاس کام کرنے والوں سے لے کر گاؤں والوں تک کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ الٹا وہ محض روایتی وڈیرے ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ہمیشہ آسانیاں ہی پیدا کرنا چاہتے تھے اور اسی کی کوشش کیا کرتے تھے۔ گاؤں بھر میں کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے میرے ابا کے پاس آتے، اور ابا بھی بے تحاشا امیر اور وڈیرا ہونے کے باوجود خود اٹھ کر ان کے ساتھ چلے جاتے تھے اور ہر طرح سے اپنے آس پاس رہنے والوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے ابو صرف مدد کرنے پر ہی یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے میرے چچا کی مخالفت کے باوجود گاؤں میں ہائی اسکول تک بنوایا اور کالج پڑھنے میں جانے والوں کے لیے اور گاؤں تک آمد و رفت کے لیے سڑک بھی پکی کروائی تاکہ ہمارا گاؤں کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھ لکھ کر اچھی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو کام میں لا کر ان کے لیے کوئی نوکری یا کام کا بندوبست بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے میرے ابا کی گاؤں میں بے حد عزت تھی، سب لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دوسری طرف میرے چچا کا مزاج میرے ابو سے بالکل ہی الٹ تھا، اور وہ بے حد لالچی اور ظالم انسان تھے۔ اسی لیے گاؤں والے ان سے بچ بچا کر رہتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میرے چچا کا سامنا کم سے کم کریں۔ ہماری زمینیں مشترکہ تھیں اور بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے ابو ہی پورے خاندان کے سربراہ تھے۔ اس وقت تک دادا ابو کا انتقال ہو چکا تھا اور خاندانی روایت کا پاس رکھتے ہوئے ابو ہی اب سارا انتظام سنبھال رہے تھے۔ میرے دادا کی 4 اولادیں تھیں۔ ابا سب سے بڑے تھے اور ان کے بعد 2 بہنیں اور پھر سب سے چھوٹے چچا تھے۔ چھوٹے ہونے اور لاڈلے ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج میں سرکشی اور غرور بہت زیادہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتے تھے اور ان کی وجہ سے ان کی چیرہ دستیاں اور مظالم بھی کم ہی تھے۔ لیکن یہ بات سب گاؤں والے جانتے تھے کہ اگر میرے چچا کو فری ہینڈ مل گیا اور وہ آزاد ہو گئے تو وہ گاؤں والوں کا جینا مشکل کر دیں گے۔ میں اپنے امی ابو کی شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور منتوں مرادوں سے مانگی ہوئی اولاد تھی۔ اس وقت تک میرے چچا کا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا جس پر وہ بہت فخر کرتے تھے۔ میرے پیدا ہونے پر میرے ماں باپ کو تو بہت خوشی ہوئی، لیکن میرے چچا نے لوگوں کے سامنے افسوس کا اظہار کیا کہ میرے بھائی کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ البتہ میرے ابو کسی ایسی بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے۔ گاؤں والوں کے سامنے تو چچا افسوس کا اظہار کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہی چلتا تھا کہ اب چونکہ بڑے بھائی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو تمام تر خاندانی جائیداد کا وارث میرا بیٹا ہی بنے گا۔ اسی لیے
ان کے غرور میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا اور ان کی اکڑ بھی بڑھ گئی تھی۔ اس معاملے میں میرے ابو بے حد نرم دل اور اچھے مزاج کے انسان تھے۔ ان کے دل میں کبھی بھی جائیداد یا دولت کا لالچ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میری تعلیم و تربیت پر بھی اسی انداز سے توجہ دی اور ہر لحاظ سے مجھے اپنے جیسا ہی بنانے کی کوشش کی۔ میرے پیدا ہونے پر امی ابو نے بہت خوشیاں منائیں اور اللہ کا بے حد شکر ادا کیا جس نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ میں چونکہ شادی کے بہت عرصے بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے دونوں کو مجھ سے بے حد پیار تھا۔ ابا نے میری پیدائش پر گاؤں بھر میں مٹھائیاں بانٹی اور کئی دن تک سب کی دعوت کی۔ میری تعلیم و تربیت میں ابو نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور مجھے بچپن سے ہی بہتر سے بہترین تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ میں چونکہ امی ابو کی لاڈلی تھی اور ابو ہی خاندان کے سربراہ بھی تھے، اس لیے ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ہی سب سے اچھا پروٹوکول ملتا تھا اور اس بات پر چچا جل بھن جاتے تھے۔ جب میں اسکول جانے کی عمر کی ہوئی تب بھی ابو نے مجھے اسکول داخل نہیں کروایا، بلکہ میرے لیے گھر پر ہی ٹیچرز کا انتظام کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی معصوم اور لاڈلی بیٹی پر اتنی سی عمر میں پڑھائی کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اسی لیے 8 سال کی عمر تک میں گھر میں ہی پڑھتی رہی۔ میں جب 8 سال کی ہوئی اس وقت تک چچا کے 3 اور بیٹے بھی پیدا ہو چکے تھے اور اب وہ 4 بیٹوں کے باپ تھے اور ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اس بات کی وجہ سے ان کا فخر اور غرور اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اور وہ مزید ظالم ہو گئے تھے۔ اب تو وہ ابو کی بھی کسی بات کو کم ہی خاطر میں لاتے تھے اور زیادہ تر اپنی من مانیاں ہی کیا کرتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ چچا کے بیٹوں کو کوئی پروٹوکول نہیں ملتا تھا یا ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی تھی، وہ بس میرے لاڈ پیار کو دیکھ کر اندر ہی اندر جلتے بھنتے رہتے تھے۔ اس وقت تک ہمیں ان کے دل میں چلتی ہوئی کسی بات کا علم نہیں تھا اور نہ ہی ہم جانتے تھے کہ ہمارے بارے میں چچا کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ جب میں 8 سال کی ہو گئی تو امی کے بار بار کہنے پر آخرکار ابو نے مجھے شہر میں ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ ویسے تو گھر میں 3-4 ڈرائیور بھی موجود تھے اور کئی گاڑیاں بھی، لیکن ابو صبح صبح میرے لیے ہی جلدی اٹھتے تھے اور مجھے خود اسکول چھوڑ کر آتے تھے اور اپنے تمام تر مصروفیت کے باوجود وہ خود ہی مجھے لینے کے لیے جاتے تھے۔ میں بھی اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرتی تھی کیونکہ ان کی طرف سے ہی مجھے بے تحاشا محبت ملی تھی۔ میں اپنے چاچو سے بھی بے حد محبت کرتی تھی اور اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ میرے چچا میرے بارے میں کیسے خیالات رکھتے ہیں اور وہ صرف اپنے بڑے بھائی کو دکھانے کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ در حقیقت میرے چچا کی محبت میرے لیے محض ایک ڈرامہ ہی تھی اور ہم سب اس بات سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میں نے یوں ہی میٹرک بھی کر لیا۔ میٹرک کرنے کے بعد جب میں نے آگے پڑھنا چاہا تو چچا میرے راستے کی دیوار بن گئے اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹیوں کو اتنا زیادہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ البتہ میرے بابا ان کی اس طرح کی کسی بات میں نہیں آئے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی بڑے تحمل اور پیار سے سمجھا دیا کہ میں اپنی بیٹی کو ہر طرح سے اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا۔ یوں میری پڑھائی نہیں رکی اور میں آگے پڑھتی رہی۔ لائق فائق ہونے کی وجہ سے میرے نمبر بھی ہمیشہ اچھے ہی آئے۔ ویسے بھی کسی قسم کی ٹینشن ہمارے گھر میں موجود نہیں ہوتی تھی اور اس لیے میری تعلیمی کارکردگی بھی بہت اچھی تھی۔ اب میں کالج جانے لگی تھی تو اس وقت تک ابا کی مصروفیات بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ اب مجھے ایک ڈرائیور اور ایک دوسری گاڑی میں 2 گارڈز ساتھ ہی کالج چھوڑنے جایا کرتے تھے اور جب تک میری چھٹی نہ ہوتی وہ وہیں پر موجود رہا کرتے تھے۔ میرا یہ پروٹوکول دیکھ کر بہت سارے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے، لیکن یہ میرے بابا کی کیئر اور فکر تھی کہ وہ مجھے کسی بھی طرح سے اپنے علاقے میں موجود بلا وجہ کی دشمنیوں کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے وہ میرا بے حد خیال رکھا کرتے تھے۔
चच्चा का बड़ा बेटा भी अब जवान हो चुका था और चच्चा ने मेरे कॉलेज मुकम्मल होने पर बाबा से अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया। उस वक्त तक बाबा को भी समझ आ चुकी थी कि उनका छोटा भाई उनके लिए और उनकी बेटी के लिए क्या ख्याल रखता है। इसीलिए उन्होंने बड़ी सहूलत से मना कर दिया और कहा कि अभी हानि पढ़ रही है और जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती मैं ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहता। मेरे चच्चा इस फैसले पर और इस ढके छुपे इनकार पर बेहद आग बगौला हुए, लेकिन वो कुछ और नहीं कर सकते थे क्योंकि सारी की सारी जायदाद अब्बा के पास ही थी। अब मैं आगे MBBS करके एक डॉक्टर बनना चाहती थी और अब्बा भी इस मामले में मेरे साथ थे। अलबत्ता अम्मा का कहना था कि इतनी पढ़ाई काफ़ी है, लेकिन अब्बू इस मामले में मुकम्मल तौर पर मेरे हक में थे, इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। अब मैं भी इंटर करते 18 साल की हो चुकी थी और तमाम मामलात को अच्छी तरह समझती थी। अपने चच्चा के रवैये की मुझे अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी, इसीलिए मैं ज़्यादातर उनसे फासला ही रखने की कोशिश करती थी। मेरे अच्छे मार्क्स और अब्बा की दौलत की वजह से MBBS में मेरा दाखिला बड़ी ही सहूलत से हो गया और मैं अब एक अच्छे लेकिन सरकारी कॉलेज से डॉक्टर बनने का सफ़र शुरू कर चुकी थी। मेरे MBBS करने पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे चच्चा को ही थी, क्योंकि उनका कोई भी बेटा इतना लायक नहीं निकला था और उनका बड़ा बेटा जिसके लिए वो मेरा हाथ मांगना चाहते थे, वो भी इंटर करने के बाद अब गांव में आवारागर्दी करता था और अपनी दौलत की नुमाइश में ही मसरूफ़ रहता था। सुनने में आया था कि वो नशा भी करता है और इस तरह की दीगर खुराफात का भी शिकार हो चुका है। मैं MBBS के 3rd ईयर में थी जब अब्बा ने इन तमाम हालात को देखते हुए एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और सबको साथ बिठाकर उन्होंने जायदाद ख़ानदान की रिवायत के मुताबिक दोनों भाइयों में बराबर बराबर तकसीम कर दी। अब्बा और चचा की दोनों बहनों ने जायदाद लेने से इनकार कर दिया था, हालांकि अब्बू उन्हें उनका हक देना चाहते थे। मेरी दोनों पुफियां बड़े अच्छे घरानों में ब्याही हुई थीं और इसीलिए उन्होंने जायदाद लेने से भी इनकार कर दिया था। ये सब देखकर चचा की अरमानों पर ओस पड़ गई थी और वो ढके छुपे अल्फाज में बार बार अब्बा को कहने लगे कि मैं हानि को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। मैं भी समझती थी और अब्बा भी इस बात को समझते थे कि दरअसल मुझे बहू बनाने के पीछे पूरी जायदाद अपने कब्जे में कर लेना ही मकसूद है। इसीलिए अब्बा ने उस फैसले के चंद दिन बाद ही खुफिया तौर पर अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी और इस बात की किसी को भिनक भी नहीं लगने दी। अब्बा ने मुझे अकेले में इन सब के बारे में बताया और अच्छी तरह से समझा दिया कि इस मामले में अपना मुंह मुझे बंद रखना होगा। जायदाद के वो तमाम पेपर्स एक वकील की मार्फत तैयार करवा के और तमाम कार्रवाई मुकम्मल करवा के शहर में ही एक बैंक के लॉकर में रखवा दिए गए। उस बैंक के लॉकर तक रिसाई भी अब्बा ने सिर्फ मेरी ही रखवाई और ख़ुद भी किसी किस्म की रिसाई नहीं ली। इस मामले का हमारे घर में मेरी माँ को भी नहीं पता था। इस सब का मकसद यही था कि चच्चा की बददियानती और लालची फितरत किसी दिन कोई गुल ना खिला दे तो हम लोग यूं बेयारो मददगार ना रह जाएं। मैं इस सब के हक में नहीं थी, लेकिन अब्बू का कहना था कि आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता, इसलिए पहले से तैयार रहने वाला इंसान ही अक्लमंद होता है। अब हमारी सारी जायदाद संभाल तो अब्बू ही रहे थे, लेकिन वो सब की सब जायदाद दरअसल मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी थी। मैंने अब्बू से जब ये पूछा कि आपने अम्मी को क्यों नहीं बताया, तो अब्बू कहने लगे कि भाई वो औरत है और तुम्हारी माँ है, इसीलिए उसके जज्बात कुछ और तरह के होंगे और घर की छोटी मोटी चपकलिश में कभी न कभी ये बात उसके मुंह से निकल सकती है। मैं चाहता हूं कि जब तक तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाओ तब तक ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए इस बात को अब तक उससे राज में रखा है। वैसे भी इस बात पर तुम्हारी अम्मी को कोई एतराज़ नहीं होगा, इसलिए तुम बेफिक्र रहो।
मैं भी सुनकर खामोश हो गई और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। अब्बा की जायदाद बांटने और चचा के बेटे का रिश्ता मुस्तरद होने के बाद चचा से ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ और उन्होंने महज 1 साल बाद ही, जब मैं 4th ईयर में थी, अपनी जायदाद बिल्कुल ही अलग कर ली और उसका सारा इंतज़ाम भी खुद संभाल लिया। अब्बा ने इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। चचा अब रहते तो हमारे साथ उसी हवेली में थे, लेकिन उनकी जायदाद और ज़मीनों का सारा इंतज़ाम अलग हो गया था। गांव भर में से कोई भी शख्स उनकी ज़मीनों पर काम करने को तैयार नहीं था और सब के सब अब्बा के साथ ही उनकी ज़मीनों पर काम करना चाहते थे। इसलिए चचा को दूसरे आसपास के गांव से मज़ारे और कैसान लेना पड़े जो उनकी ज़मीनों पर काम कर सकें। वक्त गुजरता गया और मेरा MBBS की डिग्री कंप्लीट हो गई। उस वक्त तक मैं 1 साल की हाउस जॉब भी कर चुकी थी और अब मैं स्पेशलाइजेशन के लिए भी एडमिशन ले चुकी थी। अब्बा बहुत खुश थे और उन्होंने इसी खुशी में हस्बे मामूल पूरे गांव की दावत भी की थी। चचा भी उस दिन खुश नज़र आने की एक्टिंग ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा देखते हुए कोई भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो अंदर ही अंदर किस किस्म के पेचोताप खा रहे हैं और शदीद हसद का शिकार हैं। 2 साल किस तरह गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ। इस अरसे में अब्बा के ताल्लुकात की वजह से मैं एक अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में जॉब भी हासिल कर चुकी थी और मेरी स्पेशलाइजेशन भी मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन अब भी मेरा वही मामूल था और जॉब पर आते जाते अब भी ड्राइवर के साथ एक गाड़ी में 3 या 4 गार्ड्स मेरे साथ रहा करते थे। हर तरह से जदीद तालीम हासिल करने के बावजूद मैं अब तक अब्बा की वही लाडली बच्ची थी जिसने कभी अकेले घर से कदम नहीं निकाला था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और अब अब्बा भी मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले दिन मेरे लिए किस कदर मुश्किल होने वाले हैं और मैं किस किस्म के वबाल में घिर जाने वाली हूँ। मेरी जॉब स्टार्ट हुए 1 ही साल हुआ था कि एक दिन हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी। अब्बा को हार्ट अटैक हुआ और पहला हार्ट अटैक ही इस कदर जानलेवा साबित हुआ कि मैं घर में होते हुए भी उनकी मदद नहीं कर सकी। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता वो उससे पहले अपने रब के हुजूर जा चुके थे। हमारे घर में कोहराम मच गया था। मुझे तो अपने अब्बा की बेहद आदत थी और बावजूद एक मैच्योर और तालीम याफ्ता लड़की होने के मैं उनके बगैर इस दुनिया को देख ही नहीं सकती थी। अलबत्ता हमारे इन जज्बात और रोने धोने से भला जाने वाला कब वापस आया करते हैं। यही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। अब्बा के जाने से एकदम से अमली तौर पर सारा कंट्रोल चचा के हाथ में आ चुका था। पूरे मुल्क में फैले हुए हमारे रिश्तेदार एक एक करके इकट्ठे हो रहे थे और हमारा घर लोगों से भर चुका था। सिर्फ हमारा ख़ानदान ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी धाड़े मार मार कर रो रहे थे, क्योंकि अब्बा उनके हक़ में किसी मसीहा से कम नहीं थे जिन्होंने हमेशा अपने गांव वालों को अपने भाइयों की तरह समझा और उनके सर पर हमेशा बड़े भाइयों की तरह ही हाथ रखा था। हम सबके रोने धोने और मातम करने से मेरे अब्बा वापस नहीं आ सकते थे। मुझे और अम्मा को तो चुप लग गई थी और अब हमें अपना मुस्तकबिल भी अंधेरा ही नजर आ रहा था। वक्त किसी तरह से पलटा खाता है और इंसान को किस तरह से आसमान से पटक कर ज़मीन पर ला फेंकता है, उसका अमली मुशाहिदा हम अब कर रहे थे। अब्बा की तहजीज़ो तकफीन के बाद घर एकदम से सूना सूना हो गया था। हालांकि घर अब भी मेहमानों से भरा हुआ था जो 40वें तक यहीं पर रहने वाले थे। मुझे और अम्मा को तो सब्र ही नहीं आ रहा था, लेकिन यही तो इंसान की मजबूरी है कि वो मौत पर काबू नहीं पा सकता और हम सब्र करना चाहें या ना करना चाहें, सब्र ही हमारी मजबूरी बन जाता है। इसीलिए हमें भी सब्र करना पड़ा और अपने आप को खड़ा करके दुनिया को ये दिखाना पड़ा कि हम अभी मौजूद हैं। वैसे भी जाने वालों के साथ ज़िंदगी कब ख़त्म हुआ करती है। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है।
मैंने जॉब से 3 माह की रुखसत ले ली थी और मेरे ताल्लुकात की वजह से मुझे ये रुखसत आसानी से मिल भी गई थी। 40वें के बाद जब सब लोग चले गए और बाकी सबके लिए ज़िंदगी मामूल पर आ गई, तब हमें अंदाज़ा हुआ कि इन 40 दिनों में क्या कुछ हो चुका है। चचा ने हमें बताए बगैर पूरे घर को टेक ओवर कर लिया था और घर में तमाम मौजूद वफादार मुलाजमीन निकाल बाहर किए थे। अब पूरे घर में चचा के ही रखे हुए और उनके वफादार लोग मौजूद थे, जो मुलाजिम कम और छटे हुए गुंडे ज़्यादा थे। ये देखकर हम दोनों माँ बेटी को एकदम से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। अभी अब्बा की वफ़ात को 2 माह भी पूरे नहीं गुजरे थे कि चचा ने अम्मा पर मेरी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अब बड़े भाई चले गए हैं तो अब मैं ही इस घर का सरबराह हूँ, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हानिया की शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए और इस मामले को मज़ीद न खींचा जाए। अम्मा भी अब्बा के जाने के बाद एकदम से बेहद होशियार और फ़िक्रमंद हो चुकी थी। वो अच्छी तरह से अपने देवर के मिजाज और इरादों से वाकिफ़ थी और जानती थी कि अगर उन्होंने मेरी शादी उनके बड़े बेटे से कर भी दी तब भी मेरी हैसियत महज एक कठपुतली की होगी और मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अम्मा बेशक मेरी पढ़ाई और तरक्की के ख़िलाफ़ रही थी, लेकिन अब वो किसी कीमत पर अपनी बेटी को यूं एक जहन्नुम में नहीं धकेलना चाहती थी। अम्मा ने बड़ी सहूलत से चचा को कहा कि अभी तो तुम्हारे भाई को इस दुनिया से गए हुए 2 माह भी पूरे नहीं हुए और तुम्हें ये फ़िक्र पड़ गई है। ज़रा सब्र से काम लो, हम इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन चचा का इसरार रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा था। अम्मा के मना करने के बावजूद वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने ये जिक्र निकाल ही लेते थे। मैंने जो 3 माह की रुखसत ली थी, मेरे लिए वही पहाड़ बन गई थी। मुझे साफ नज़र आ रहा था कि अगर इन 3 माह में चचा ने अपने इरादों पर अमल कर लिया तो सबसे पहले तो मेरा बाहर आना जाना और मेरी जॉब बंद करवाएंगे, और ये मैं किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। ये सब मेरे अब्बा का ख्वाब था जिसके लिए उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया था, और मैं ये सब यूं अपने हाथों से नहीं खो सकती थी। अब्बा की वफ़ात को जब 3रा महीना शुरू हुआ तो एक दिन चचा ने सारी हदें क्रॉस कर दी। उन्होंने बुरी तरह से डांटते हुए हम दोनों माँ बेटी को खूब बातें सुनाई और कहने लगे कि अगर तुम हानिया की शादी मेरे बेटे के साथ नहीं करोगी तो मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा और तुम्हारी जायदाद भी मेरे पास आ जाएगी। वैसे भी भाई के जाने के बाद भाई के नाम की जायदाद हमारे ही हिस्से में आएगी। ये सुनकर, उनका ये मकरूह रूप देखकर मुझसे ज़ब्त नहीं हो सका। बजाय अम्मा के जज्बाती होने के मैं जज्बाती हो गई और मैंने खड़े होकर बोल दिया कि मेरे अब्बू अपनी ज़िंदगी में ही ये सारी जायदाद मेरे नाम कर चुके हैं, इसलिए आपको इस जायदाद में से 1 इंच ज़मीन भी नहीं मिल सकती। मैं भी इस जायदाद के बारे में एक वसीयत कर चुकी हूँ, इसीलिए आप भूल जाएं कि ये जायदाद कभी भी आपको मिलेगी, चाहे आप हम दोनों को मार ही क्यों ना दें। मेरी ये बात महज एक बात ही नहीं, एक धमाका थी जिसने चचा का वो रूप हमें दिखाया जो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। मेरी बात का रद्द-ए-अमल चचा पर बेहद भयानक अंदाज से हुआ। एकदम से ऐसे लगा जैसे हमारे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर खड़ा है जो हमें चीर फाड़ के खा जाएगा। ज़मीन और जायदाद किसी के लिए इस हद तक अहम हो सकती है, मैंने तो कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। चचा पहले तो हमें खा जाने वाली नज़रों से घूरते रहे और फिर उन्होंने आगे बढ़कर मुझे बालों से पकड़ लिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैं इस हद तक हैरत से सुन्न हो गई थी कि मुझे अपने दिफा तक का ख्याल नहीं रहा और मैं सदमे की सी हालत में चुपचाप खड़ी चचा के थप्पड़ खा रही थी। दर्द इतना था कि मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरी चीख की बजाय मेरे मुंह से खून की धार ज़रूर निकल आई थी। थोड़ी देर बाद चचा मुझे मेरी माँ की तरफ धकेला और कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर देखो मैं अब तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा और तुम लोग मरने को तरसोगे।
ये कहकर उन्होंने अपने गुंडों को आवाज़ दी और हम दोनों माँ बेटी पर कड़ी नज़र रखने का कहा। उसके बाद वो फनफनाते और ऑल फॉल बकते हुए कमरे से निकल गए। हम दोनों माँ बेटी को हमारे कमरे में बंद कर दिया गया। हम दोनों ही एक दूसरे से लिपटी हुई आने वाले भयानक हालात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। मेरे तो आंसू गोया खुश्क हो चुके थे और अम्मा बेतहाशा लेकिन बेआवाज़ रोते हुए हाथों से टटोल टटोल कर अपनी इकलौती औलाद की जख्मों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। आखिर कुछ देर बाद मेरी खामोशी भी टूट गई और मैं चीखें मार कर रोती हुई अपनी माँ के सीने में समा गई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के सीने से लगे ज़ारों कतार रो रही थी। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि अब्बा का मौजूद होना हमारे लिए किस कदर बड़ा साइबान था और उनके जाने के बाद ये दुनिया किस कदर जालिम हो सकती है। अम्मी मुझे कह रही थी कि बेटी, तुमने अपने चचा को झूठ तो बोल दिया है, लेकिन यही झूठ हमारे लिए मौत का परवाना बन जाएगा जब उन्हें मालूम होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी अम्मी को फिर सब कुछ सच सच बता दिया और ये सब जानकर मेरी माँ पहले तो खुश हुई कि अब्बू ने अपनी ज़िंदगी में ही सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, लेकिन वो फिर बेहद फिक्रमंद हो गई और कहने लगी कि हानि बेटे, अगर ये बात है तो फिर तुम्हारे चचा इस जायदाद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें उनसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। हम दोनों यहाँ से चुपचाप निकल जाते और फिर किसी और ज़रिए से अपनी जायदाद का कब्ज़ा वापस हासिल कर लेते। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो कुछ होना था वो तो हो चुका था। अब हमें ये फ़िक्र सता रही थी कि न जाने चचा हमारे साथ क्या सलूक करेंगे और हमारे साथ किस तरह से पेश आएंगे। जायदाद और दौलत के लालच में चचा को पागल होते तो हम अपनी आंखों से देख ही चुके थे। हमसे हमारे फ़ोन भी ले लिए गए थे और अब हम कहीं पर भी राब्ता नहीं कर सकते थे। मैं जानती थी कि उस वक्त चचा सर तोड़ कोशिश कर रहे होंगे कि घर में हमारी जायदाद के कागजात मिल जाएं। मेरा यह अंदाज़ा सच निकला और अगली सुबह हमारे लिए बेहद भयानक थी। चचा को न जाने किस तरह से एक रात में ही इल्म हो गया था कि अब्बा ने मेरी जायदाद के कागजात किसी बैंक में रखवाए हैं। ये तो मुझे बाद में पता चला कि अब्बा का वकील बिक गया था, लेकिन अब्बा ने भी कुछ ऐसा पक्का इंतज़ाम किया था कि मेरे नाम पर मुत्तकिल होने वाली जायदाद के जाली पेपर भी नहीं बन सकते थे। अब्बा ने बैंक में कागजात रखवाते हुए वकील को भी नहीं बताया था, इसलिए वकील को इतना तो मालूम था कि कागजात किसी बैंक में रखवाए गए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किस बैंक में। यही लाइल्मी हमारे हक में रहमत भी साबित हुई और जहमत भी। चचा को जब हर तरफ से नाकामी मिली और उन्हें मालूम हो गया कि बैंक का इल्म सिर्फ मुझे होगा, तब उन्होंने एक नई चाल चली। चचा ने जायदाद के कागजात तैयार करवा लिए थे और हम दोनों माँ बेटी को घसीट कर बाहर ले आया गया था। चचा का कहना था कि मैं उस वक्त कानूनी तौर पर हानिया का सरपरस्त बन सकता हूँ। अगर मैंने हानिया की माँ को गोली मार दी और मुझसे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, इसलिए हानिया चुपचाप जायदाद के इंतकाल के कागजात पर दस्तखत कर दे और सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, वरना। ये कहकर उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगे कि तुम्हारी माँ को मारकर मैं तुम्हारी शादी किसी बूढ़े खूसट से करवा दूंगा। तुम्हें अपनी बहू तो मैं सारी जिंदगी नहीं बना सकता। मैंने रोते हुए इनकार कर दिया तो उन्होंने हम दोनों माँ बेटी को खूब मारा और फिर एक रात की मोहलत देकर हमें फिर से कमरे में बंद कर दिया गया। वो रात हमारे लिए बेहद भयानक थी और हम दोनों एक दूसरे को खामोशी से देख रही थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे चचा महज जायदाद के लिए इस हद तक गिर जाएंगे कि रिश्तों की तकदीस भी उनके जहन से ख़त्म हो जाएगी। जब रात गहरी हो गई तो अम्मी उठी और कहने लगीं कि चलो बेटी, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इस हवेली से बाहर निकाल देती हूँ। तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। तुम पढ़ी लिखी हो और सब जानती हो। अगर तुम किसी तरह से मदद ला सकी तो ठीक, वरना अपनी ज़िंदगी बस आगे जारी रखना। तुम्हारी माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी।
मैं ये सुनकर रो पड़ी। मैं अपनी माँ को उस जहन्नुम में किसी भी हाल में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन अम्मी ने आखिरकार मुझे मजबूर कर ही दिया और छुपते छुपाते किसी न किसी तरह से मैं हवेली से बाहर आ गई। पहली बार मेरे पास ना तो कोई गाड़ी थी और ना कुछ और। तन के कपड़े और पैर के जूतों के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। मैं बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। रात के घटा टोप अंधेरे में रास्तों की पहचान भी मुश्किल हो चुकी थी। मैं अंधाधुंध एक रास्ते पर दौड़ पड़ी। जाने मैं कहाँ से कहाँ निकल आई थी, और खेतों का सिलसिला खत्म होने के बाद मेरे सामने एक और आबादी थी। मैं समझ गई थी कि मैं शहर जाने वाली सड़क की बजाय किसी गांव में निकल आई हूं। तभी तेज चलते और मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हुए मैं रात के इस अंधेरे में एक शख्स से टकरा गई। ये एक नौजवान लड़का था जो मेरी तरफ हैरत से देख रहा था। उसका लिबास बता रहा था कि वो किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है और पढ़ा लिखा भी है। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और रात का अंधेरा थोड़ा मध्यम पड़ गया था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं और इस वक्त इस तरह से किससे भाग रही हूं। उसके पूछने के अंदाज में न जाने किस तरह का असर था कि मैं बेख्तियार रोते हुए उसे अपने तमाम हालात बता दिए। मेरी बात सुनकर उस नौजवान के चेहरे पर अफसोस और दुख के तासुरात फैल गए, और कुछ लम्हे सोचकर वो कहने लगा कि मेरे साथ आओ और बेफिक्र रहो, तुम तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। ये कहकर वो मुझे अपने साथ लिए चल पड़ा। तब रास्ते में मुझे मालूम हुआ कि वो साथ वाले गांव के जागीरदार का बेटा है। रात के इस पहर जब हम उसकी हवेली में दाखिल हुए तो वो मुझे सीधा अपनी माँ के पास ले गया। मेरी कहानी सुनकर उसकी माँ को भी बेहद गुस्सा आया। तब मुझे मालूम हुआ कि ये अब्बा के दोस्त जागीरदार का बेटा है, जो हमारे गांव से कुछ फासले पर रहते थे। वो हम जितने बड़े जागीरदार तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी इस इलाके में मानी जाती थी। उस लड़के की माँ ने मुझे बेहद तसल्ली दी और उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत खिला पिलाकर सोने के लिए कह दिया और कहा कि तुम बेफिक्र रहो, सुबह सब ठीक हो जाएगा। मैं भी लेट तो गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। यूं ही सोते जागते वो रात गुजर गई और न जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख तब खुली जब बाहर से बेतहाशा शोर की आवाज़ें आने लगी। मैं हड़बड़ाकर उठी तो देखा दिन के 11 बज चुके थे। शायद मुझे सोते देखकर किसी ने नहीं जगाया था। मैं एकदम से खुद की हालत दुरुस्त करती और कपड़े संभालती उठी, और जब बाहर आई तो मुझ पर गोया आसमान ही टूट कर पड़ा। हवेली के इस लाउंज में मेरे चचा, उनके तमाम बेटे और उनके साथ साथ मेरी माँ और कुछ गुंडे भी मौजूद थे, जो मुझे तलाश करते करते न जाने किस तरह से यहाँ पहुँच गए थे। मेरे चचा मुगल्लिज़ात बक रहे थे और कह रहे थे कि मेरी भतीजी को मेरे हवाले किया जाए, मैं उसका निकाह फिक्स कर चुका हूँ। मेरे चचा की ये बात सुनकर वो नौजवान आगे बढ़ा और कहने लगा, हानिया से मैंने कल रात ही निकाह कर लिया है। तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले और किसी लड़की की किस्मत का फैसला करने वाले? मैं तो उस लड़के के मुंह की तरफ ही देखती रह गई, जिसने इतनी जुर्रत से सबके सामने मुझे अपनी बीवी कह दिया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसकी बात सुनकर चचा को एकदम से चुप लग गई, और वो लड़का जिसका नाम जाहिद था, उसने बड़ी सख्ती से सबको अपनी हवेली से जाने का कह दिया। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ को रोक ले, तो उसने मेरी माँ को भी रोक लिया। मुझे उस लड़के की माँ एक कमरे में छोड़कर बाहर चली गई, और फिर न जाने उनके दरमियान क्या बात हुई कि वो वाकई उसी शाम मेरी माँ ने उस लड़के जाहिद के साथ मेरा निकाह पढ़ा दिया। मुझे बाद में इल्म हुआ कि जाहिद भी मेरी तरह एक डॉक्टर है, जो छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था, और वो सुबह सवेरे चहलकदमी के लिए बाहर निकला था जब मैं उससे मिली। बाद में जाहिद की मदद से मैंने अपनी जायदाद का कब्जा भी वापस हासिल कर लिया, और फिर अम्मा के कहने पर हम दोनों बाहर शिफ्ट हो गए। चचा की बदनीयत और लालची फितरत उनके बेटों में भी आई, और उनके बड़े बेटे ने जुए और नशे की लत में पड़कर अपने ही बाप को कत्ल कर दिया।
और यूं चचा का पूरा खानदान आज टूट फूट का शिकार हो चुका है और उनकी जायदाद भी टुकड़े टुकड़े होकर ख़त्म हो चुकी है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।